Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session we are going to discuss a new topic, the data types. Okay, so first we need to understand that what is data types. Data types means the type of the data, which kind of data it is. As you know very well, the data means the value. Data means value and value means literals. Literals last class में हम लोगों ने पढ़ा था. Literals it is a part of token. Literals, ठीक है. So which kind of literals it is, which kind of value it holds, ठीक है. Values किस टाइप की हो सकती है? It may be a number, ठीक है. It may be a digit. Number means digit, sorry. Wait a minute. It may be a number, bracket में digit. It may be a character value, ठीक है. It may be a string value. Clear? Or it may be a, there is a division in numbers. It may be a fraction value or it may be a whole number. तो नंबर में अगर हम बात करते हैं, इट मे बी अ होल नंबर और इट मे बी अ डेसिमल नंबर, ठीक है. पॉइंट वैल्यू भी कह सकते हैं आप, ठीक है. जैसे कि 23 एक कैसा है? होल नंबर है. प्लस 23 कहें या माइनस 23 कहें, बात एक ही है. डेसिमल नंबर लाइक 23.5 इफ आई एम राइटिंग, ठीक है. प्लस कहें या फिर माइनस 23.5 अगर हम कह रहे हैं, तो ये क्या है? डेसिमल नंबर्स हैं. कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सिंगल कैरेक्टर stored inside single quotes. If I am writing S, it is also a character. Asterisk symbol inside single quotes, it is also a character. So value can be a character also. If I am talking about the string, any value, any word written inside the double quotes, it may be a also, a single letter also, but it is stored in double characters, so it will treat as a string value. Who will treat as a string value? JVM will treat as a string value. Got it? So इस तरीके की वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. अब जो नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, इसमें भी बाइफर्केशन कर दिया गया. नंबर्स में भी कई सारे नंबर्स हैं. इंटीजर टाइप नंबर है, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स हैं, ठीक है. वो सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए, इतना क्लियर है. कम टू द नेक्स्ट. यस, द टाइप्स. The first one, as you know very well, the data types are categorized into two parts. Data types convert into two parts. The first one is primitive. Primitive data types is also known as built-in data type. ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? built-in. built-in मतलब ये पहले से ही क्या है? pre-defined है, ठीक है. Sometimes it is also known as intrinsic. इसको क्या बोल देते हैं बेटा? intrinsic. इंट्रिंसिक को अगर हम हिंदी में बोले तो इंट्रिंसिक मतलब होता है मूलभूत. इंट्रिंसिक मतलब होता है मूलभूत, मतलब भूत नहीं, मूलभूत, बेसिक. बेसिक कह सकते हैं, फाउंडेशंस कह सकते हैं, जो कि ऑलरेडी सेव्ड है जावा में, ठीक है. इट इज डिक्लेयर्ड बाय द जावा डेवलपर, यू कैन से, ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव, ठीक है. नॉन primitive. Non-primitive is also known as derived data types. Sometimes it is known as derived data type, or it is also known as referenced data type. बेटा ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं इस नाम से भी, ठीक है. referenced data type, or sometimes it is also known as composite data type. composite data type, ठीक है. built in means primitive data type और non primitive means derived, referenced और composite data type. क्लियर बेटा? primitive जो ऑलरेडी क्या है? predefined है. predefined पहले से ही डिफाइंड किए गए हैं. predefined हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. it is already defined by the JVM, sorry, it is already defined by the Java developer, ठीक है. JVM is just a compiler, nothing else.
Non-primitive data types are further classified in different types, that is class, array or interface. Class, array and interface. But the primitive data type is divided into two parts that we will discuss in whole session. Okay, in today's session we will discuss about primitive data types. Non-primitive data types we will discuss further. Okay, so inside primitive data type you can also write integer data type, integer data type. I'm going to discuss in the next slide, just wait a minute. Yeah, we are going to discuss data type. Inside this data type we are discussing which kind of data type? Primitive data type. Okay, primitive. Inside the primitive data type there are lots of inbuilt data types are there. The first one is integer data type. ठीक है, integer data type. The second one is what बेटा? Floating point data type. Floating point. ठीक है, floating point. बेटा आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को दो तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो, नंबर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में. न्यूमेरिक में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे आपके. ये दोनों पार्ट किसके अंदर आ सकते हैं? न्यूमेरिक के अंदर. न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. आप लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो हमने सिंपली इसको ऐसे राइट कर दिया है. और किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है डेटा टाइप्स, इनसाइड द डेटा टाइप्स प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव के अंदर न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक के अंदर है इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट, और नॉन न्यूमेरिक के अंदर आपके कौन कौन से हैं? कैरेक्टर और बुलियन. ठीक है, तो ये क्या है बेटा? कैरेक्टर. कैरेक्टर डेटा टाइप मैंने बताया था ना, विच काइंड ऑफ डेटा वैल्यूज इट कैन स्टोर. सो इट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, होल नंबर, कैरेक्टर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू, और समटाइम्स इट कैन आल्सो स्टोर द बुलियन वैल्यू. ये बुलियन वैल्यू क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे. नो नीड टू टेक पैनिक. ये दोनों कैसे हैं बेटा? नॉन न्यूमेरिक है. ठीक है, नॉन न्यूमेरिक. इस तरीके से भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक. इनसाइड द न्यूमेरिक वी कैन कैटेगराइज इट टू पार्ट्स, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, और इनसाइड द नॉन न्यूमेरिक वी कैन कैरेक्टराइज इन कैरेक्टर एंड बुलियन. ठीक है, अब देखिए एक एक डेटा टाइप को हम लोग समझेंगे इसके अंदर के. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फर्दर क्लासिफाइड है. इसके अंदर कई सारे डेटा टाइप्स हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अभी इसके अंदर मैं राइट कर दे रहा हूँ कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. ठीक है, इसके अंदर आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग. इसके अंदर आते हैं ये चार टाइप के डेटा टाइप. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेंज ये इसको डिवाइड किया गया है. इंटीजर को, इंटीजर की एक रेंज होती है. वैसे तो इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है, इंक्लूडिंग जीरो. इंक्लूडिंग जीरो, माइनस से लेकर प्लस तक जीरो इंक्लूडेड होता है. लेकिन ये क्या है? सब रेंजेस हैं इनकी. बाइट में छोटी रेंज होगी, शॉर्ट में उससे ज्यादा रेंज है, इंटीजर में उससे ज्यादा रेंज है, और लॉन्ग में सबसे ज्यादा रेंज कवर की गई है. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी. वेट अ मिनट. फ्लोटिंग पॉइंट में दो चीजें, इसको रियल डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं, कभी कभी रियल भी लिख के आ जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है बेटा. सो फ्लोटिंग में क्या हो जाएगा? आपके आ जाएंगे फ्लोट और दूसरा आ जाएगा डबल. ठीक है, ये दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटीजर डेटा टाइप. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, तो फर्स्ट इज इंटीजर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर होल नंबर्स. ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यूज, होल नंबर्स वी कैन स्टोर.
इसकी रेंज में क्या होती है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और अप टू प्लस वैल्यू तक ये जाएगा। ठीक है, माइनस वैल्यू, जीरो और प्लस वैल्यू। लेकिन अब माइनस में कौन सी माइनस वैल्यू, प्लस में कहां तक प्लस जाएगा, ये इसमें क्या क्या है, रेंजेस हैं। बाइट में पहले डिफाइन किया गया डेटा टाइप छोटी रेंज के लिए, अगर छोटा नंबर ले रहे हैं तो बाइट, उससे बड़ा नंबर ले रहे हैं तो शॉर्ट, उससे बड़ा इंटीजर, और उस सबसे बड़ा ले रहे हैं नंबर तो लॉन्ग। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चार्ट टाइप का बता दे रहा हूं बना के यहाँ पे। जैसे कि ये एक रेंज है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, यस। सो अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, तो मैंने कहा कि ये छोटी सी रेंज है। ये केवल किसकी है बेटा, मैंने बोला ये बाइट की रेंज है, केवल बाइट डेटा टाइप। ठीक है, ये छोटी सी रेंज आपको दिख रही है। अगर इस रेंज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मान लो सपोज दैट यहां तक की बात कर रहे हैं, तो ये रेंज है शॉर्ट की। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये रेंज आ रही है आपकी बेटा कहां तक की, इंटीजर तक की, आईएनटी की। और अगर सबसे लास्ट तक जाएंगे तो बेटा ये कौन सी रेंज आ रही है आपकी, ये लॉन्ग की। लॉन्ग मतलब सबसे लंबी वैल्यू यू कैन गिव, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और सबकी एक एक क्या होती है, रेंजेस होती है, सबकी सबकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सो वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग आल्सो। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द बाइट स्टोर, as you know very well, it is written byte, so it can store 1 byte. ठीक है, how much it can store बेटा, the size you can say 1 byte. ठीक है, it means 8 bits it can hold, 8 bits. ठीक है, short range is how much, 2 bytes. ठीक है, देखिए इसकी रेंज बढ़ गई, यहाँ पे ये छोटा था, ये क्या हो गई, इसकी रेंज बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई। और आपको पता है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं बेटा, 1 बाइट इक्वल टू, जिनको नहीं पता है यहाँ पर लिख लेना, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 बाइट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया 8 बिट्स, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, 2 बाइट्स हो गया तो कितने हो गए, 16 बिट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंटीजर ये होता है 4 बाइट। देखिए इसकी वैल्यू और ज्यादा है, इससे बड़ी है, छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करिए 8 से, 8 4 जा 32 बिट्स। क्लियर, गॉट इट, 32 बिट्स हो गया। व्हाट अबाउट द लॉन्ग, लॉन्ग में कितने बाइट होते हैं बेटा, कितने बाइट होते हैं, 8 बाइट। कितने होते हैं, 8 बाइट। सबसे ज्यादा वैल्यू लॉन्ग में आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब 8 8 जा 64 बिट्स इट कैन होल्ड। ये तो बात हो गई बेटा साइज की, किसकी बात हो गई, साइज की। मेन कॉन्सेप्ट है इसमें रेंज का, कि बेटा रेंज कैसे बनती है। बुक में तो रेंज लिखी हुई है, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये रेंज आती कहां से है, कैसे क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग रट लेते हैं मोस्टली, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1। पहले मैं रेंज लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेंज लिखता हूं, पहले मैं बाइट की डिस्कस करता हूं आपसे। अगर एक डिस्कस कर लूंगा, बाकी शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग की आप खुद निकाल लेंगे अपने आप। ठीक है, तो आपको पता होगा कोई भी नंबर की रेंज होती है, अगर हम बात करें तो इसकी रेंज होती है बाइट की, अगर हम बात करते हैं बाइट की। ठीक है, तो बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर +127, मींस +127 तक ये रेंज होती है। अगर इसके बीच में कोई नंबर और 128 दे दें माइनस का, या 127 दे दें, और सपोज मैंने लिखा बाइट, बाइट x इक्वल टू 127 सेमीकोलन, तो ये क्या बेटा सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ये कैसा डेटा टाइप है, x, बाइट डेटा टाइप है। बट अगर हम वैल्यू दे रहे हैं बाइट x इक्वल टू 128, अब बताइए बेटा एरर आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहां पर रेंज कहां तक है, केवल 127 तक है, और आपने क्या लिख दिया 128, वो भी पॉजिटिव में, तो ये एक्सीड कर गई वैल्यू, तो ये अब बाइट में नहीं रही, ये वैल्यू आ जाएगी इस किसमें, शॉर्ट में। इसको आप राइट करेंगे यहां पे करेक्ट करने के लिए शॉर्ट। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये कि रेंज आई कहां से, ये समझते हैं। सबसे बड़ी और अच्छी चीज ये है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं।
ठीक है। बाइट, मैं बाइट का बताऊंगा, बाकी आप लोग करके दिखाएंगे, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, बाकी आप लोग करिएगा। चलिए -128 ये इसकी मिन वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्स वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू आई कहां से। ठीक है, आपको पता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं बेटा? 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स। तो बेटा जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, किसमें बेटा? मेमोरी में। तो 8 बिट्स आप बना लीजिए पहले, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 8 बिट्स हैं। जो पहली बिट होती है वो साइन बिट कहलाती है। कौन सी बिट कहलाती है बेटा? साइन बिट। साइन बिट मतलब क्या होता है? इसमें साइन होते हैं, प्लस और माइनस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है माइनस और ये प्लस। तो ये प्लस और माइनस क्या करता है? साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर क्या है? 127। तो हम ये देखेंगे 127 आई कहां से, ये वैल्यू 127 जो है कहां से प्रकट हो गई एकदम से। ठीक है, तो ये वैल्यू तभी 1 हो सकती है मैक्सिमम। बाइनरी में देखिए ऐसे फॉर्म चलता है 0 0 0, ये मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम क्या होते हैं? ऑल 1 हो जाएंगे। ये जितने नंबर यहाँ पर 0 है ये मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम होती है। ये होती है बेटा मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या हो जाएंगे? सारे बिट पे 1 आ जाएगा, सारे बिट ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा ये चीज हमेशा। ठीक है, तो जो प्लस साइन होता है इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो माइनस साइन होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर कितनी बिट्स हैं? ये बिट तो साइन बिट होगी, बाकी बिट ये, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम। तो सारे बिट हमारे ऑन हो जाएंगे एक्सेप्ट साइन बिट। अरे समझ में आया कि नहीं आया इतना? ठीक है, और यहां पर ये क्या वैल्यू है बेटा? क्योंकि ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्स वैल्यू निकालना है, मैक्स वैल्यू तो पॉजिटिव तक जा रहा है ना रेंज हमारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो हम यहां लिख देंगे 0। क्लियर और नॉट? इसको मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। मैं इसको इस पेन से लिख दे रहा हूं 0। ठीक है, ये साइन बेटा है 0। ठीक है, आप समझ में आया? चलिए इसको काउंट करते हैं। बाइनरी कन्वर्जन से इसको हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये 0 प्लेस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। चलिए ऐड करते हैं। ये हो गया 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये बेटा बाइनरी कन्वर्जन जिसको नहीं आता है, मेरा वीडियो जाइए यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, वहां पर देख लीजिए जाके। ठीक है, और क्योंकि यहां पर हम आपको ये नहीं सिखा सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को बतानी है इसमें। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर वैल्यू राइट कर रहा हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधे लिख लीजिए 2 की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी वैल्यू होगी? ये 2 हो जाएगी बेटा, 2 की पावर 1। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी बेटा 8 और ये हो जाएगा कितनी बेटा? 16। 16 के बाद 5 के बाद हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 32 और ये 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। तो इसको ऐड कर दो बेटा, ये 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64। बेटा ये तो सिर्फ ऐड करना है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2 ये हो गया 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 32 31 प्लस 32 63, 63 प्लस 64 बेटा कितना हुआ? 127। ठीक है, आया। और 0 ये इसलिए था क्योंकि ये प्लस बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू 127। आप समझ गए कहां से ये वैल्यू प्रकट हुई है? ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हैव सम लॉजिक बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड इट। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है 127। सन में आ गया, ये आना बहुत जरूरी है। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए उसको भी समझते हैं जल्दी से। मिनिमम वैल्यू देखिए, मिन वैल्यू ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मिन वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फिर से ऐसे लिखेंगे, बनाएंगे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक बना दिए। क्यों बनाए 8 ब्लॉक? क्योंकि बाइट है, बाइट का साइज होता 1 बाइट का मींस 8 बिट्स। सो हर एक ब्लॉक 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 बिट को रिप्रेजेंट कर, हर एक ब्लॉक 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 8 ब्लॉक बनाए हैं, इट मींस 8 बिट्स। ठीक है। मिन वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया है कि जो साइन बिट होती है, पहले तो साइन बिट होती है, पहले ही मैंने बता दिया है क्या साइन बिट होती है, और निगेटिव के लिए साइन बिट क्या होती है, ऑन होती है। निगेटिव के लिए साइन बिट क्या होती है बेटा, ऑन होती है। मिनिमम वैल्यू के लिए हम जीरो राइट करते हैं, हमेशा सारे जीरो होते हैं, तो यहां पर राइट कर दिए सारे जीरो। ठीक है, क्या कर देंगे, सारे जीरो राइट कर देंगे। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को नहीं पता है तो याद रखिएगा, ऐसे निकालते हैं। क्या करते हैं, 1 की जगह 0 कर देते हैं और 0 की जगह 1 कर देते हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। चलिए 1 की जगह 0 कर दीजिए और 0 की जगह जहां जहां है 0 वहां वहां क्या कर दें, 1 कर दें। ठीक है, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 1। ठीक है। 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम इसका निकालते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जहां जहां ये तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, जहां 0 की हुआ वहां 1 कर दिया, जहां 1 था वहां 0 कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। कैसे निकलता है 2's कॉम्प्लीमेंट, हम लोग सबसे पहले उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद +1 कर देते हैं यहां पर। ठीक है, आप इसको निकालिए, ऐड करिए, और रूल होता है बाइनरी का 1 + 1 = होता है 10। ठीक है, तो 0 यहां पर रखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अपकमिंग बिट। तो 0 हुआ, यहाँ 1 कैरी हुआ, ये 1 1 10 फिर से हो गया, यहाँ भी 1 1 10 हो गया, फिर इसका इधर आ गया 1 1 10 हुआ, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये बिट इसको यहाँ पर दे देगा, तो ये भी 10। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट आ गया। अब चलिए इसको बेटा काउंट करिए। 0, ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4 पोजीशन है, ये 5, ये 6 और 7 पोजीशन है। तो 2 की पावर 7 क्या होता है, सारे बिट्स को ऐड करेंगे फिर से ऐसे, 0 इंटू 2 की पावर 0 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये कहां पर इनेबल होगा, 1 पर इनेबल होगा, 1 पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 0 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर 7 होगा, तो ये वैल्यू होती है 128। ठीक है, तो मिन वैल्यू कितनी होगी बेटा, 128। क्लियर है, इसलिए यहां पर हम लोग 128 रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग का आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रहा हूं, मैं सिंपली रेंज लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर राइट कर लीजिए जिनको नहीं पता, बाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं साइज, और यहाँ पर लिख दे रहा हूं रेंज। ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड द लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग मीन्स लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, चलिए शॉर्ट बाइट। ठीक है, बाइट का साइज मैंने अभी बताया आपको, कितने बिट्स था, 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट। ठीक, रेंज कितनी होती है अभी बताई मैंने, -128 से लेकर 127 तक। इसको बेटा ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 128 क्या होता है बेटा, पता है कि नहीं पता है? अभी मैंने बताया कि 128 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 7। तो यहाँ पर 2 की पावर हम 7 राइट कर सकते हैं, यस और नो, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 7 होता है 128। अब ये कहां तक जाएगा, 2 की पावर 7 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 127 लिखा हुआ है, तो -1 लगा दीजिए यहाँ पे। गॉट इट, ये हो गई रेंज। शॉर्ट में आ जाइए, शॉर्ट का साइज कितना है बेटा, 16 बिट्स। कितना होता है बेटा, 16 बिट। कैसे निकालेंगे आप, जैसे मैंने अभी बाइट का निकाला है वैसे आप शॉर्ट का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है बेटा, इसमें होती है बेटा रेंज -32768। ये देखना हमेशा एक ज्यादा ही रहेगा, 32768 से लेकर पॉजिटिव 32767 मींस एक्चुअली क्या होती है, 32768 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, ये होती है 2 की पावर 15।
क्या होती है बेटा, 2 की पावर 15, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और ये वैल्यू एक, ये 8 है तो ये 7 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 15 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? नहीं पता है तो यहां से देख लीजिए, इंटीजर की बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ कितने बिट होता है, 2 बाइट हो जाएगा, 1 बाइट नहीं होगा। 816 how much, 32 bits means 4 बाइट। क्लियर, ये हम लोग याद रखेंगे, इंटीजर में बहुत ज्यादा यूज होता है इंटीजर का। कितने बिट हो गया, 32 बिट और 4 बाइट। इसकी रेंज क्या होती है बेटा, देखिए लिख लीजिए, नहीं पता तो 2147483648 से लेकर 2147483647 तक। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है 2 की पावर 31 की। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस में लिखा हुआ है 2 की पावर 31 टू प्लस 2 की पावर 31 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, क्योंकि ये कम है इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 1 कर रहा है। ठीक है, इतना आया कि नहीं आया, यस और नो? आई होप यहाँ तक तो आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बाइट्स में कितने बिट्स है बेटा, 8 बिट्स है। ठीक है, 8 बिट्स है, शॉर्ट में 16 बिट्स, इंटीजर में 32 बिट्स, लॉन्ग। अब आता है लॉन्ग। लॉन्ग में होता है बेटा कितने, 64 बिट्स। 64 बिट्स मींस 8 बाइट। हाउ मच बेटा, 8 बाइट्स। 8 बाइट्स बेटा कितना होता है, इसकी वैल्यू पता है किसी को? नहीं पता होगी, लिख लीजिए 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 5 7 808। ठीक है, एक्चुअली ये वैल्यू मुझे भी नहीं याद है। ठीक है ये मैंने किसी तरीके से इसको कॉन्सेप्ट बनाया था, उस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको याद करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, वो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, और इसको पॉजिटिव में भी यहाँ प्लस साइन लगा के यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 8 की जगह 7 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब ये रेंज कहां से आई, इसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, 2 की पावर 63 होता है ये, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2 की पावर 63 अब 2 की पावर 63, क्योंकि यहाँ 7 है तो माइनस 1 लगा दीजिए। क्लियर, तो ये रेंज हो गई बेटा। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं -9e18। ई मतलब होता है 10, जहां ई दिख जाए ई का मतलब होता है 10। ये क्या है, पावर है, ये मैंटिसा है और उसकी पावर है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं -9 इंटू 10 टू द पावर 18 ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है, और पॉजिटिव में रेंज होगी 9 पर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9e18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना होगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, यू कैन स्टोर अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ये दूसरा टाइप का डेटा टाइप है न्यूमेरिक के अंदर। डेटा टाइप में न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक बताए थे। न्यूमेरिक में सबसे पहले इंटीजर डिस्कस किया, दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, दो चीजें होती है, जल्दी से समझते हैं, फ्लोट और डबल। ठीक है, फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं। इसमें बेटा एक स्टैंडर्ड होता है IEEE 754, IEEE 754 स्टैंडर्ड। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फ्लोट होल्ड करता है बेटा 32 बिट्स। 32 बिट्स मतलब कितने बाइट हो गया बेटा, जल्दी से बताइए कितने बाइट हो गया, 4 बाइट हो गया कि नहीं हो गया, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 बाइट। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं डबल की, तो ये होता है बेटा इसका डबल है, तो 64 बिट। 64 बिट्स, 64 बिट्स मतलब कितना होगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 बाइट, तो ये हो गया 4 बाइट
ये 8 बाइट। क्लियर हो गया, ये उसका साइज हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने इंटीजर पढ़ाया था, इसमें भी यहां तक फ्लोट की रेंज है, ये कम है, और डबल की रेंज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। किस वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू समझते हैं बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू जिनमें पॉइंट होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 जा 9, 1.0, 3 जा 9, तो 3.333 समथिंग आएगा। तो ये क्या बेटा, डेसिमल। क्लियर है। देखिए फ्लोट में क्या होता है और डबल में क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। फ्लोट में बेटा हम तब यूज करते हैं जब डेसिमल पॉइंट कम होते हैं, मतलब जैसे कि 3.33 टिल अप टू 6 और 7 पॉइंट तक हम यहाँ पर अगर वैल्यूज जाती है तो हम फ्लोट ले लेते हैं। 6 to 7 प्रेसिशन उसको बोलते हैं, प्रेसिशन। ठीक है, मतलब होता है जैसे कि 334 5 3 6 और 5, ये कितने पॉइंट है, 1 2, डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम 6 to 7 तक अगर यहाँ वैल्यू जा रही है डेसिमल के बाद, तो हम उसको फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप हम बना सकते हैं, इसको हम x इक्वल टू फ्लोट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर f लिख दीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्मॉल f या कैपिटल F फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्लोट वैल्यू, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज डबल। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा प्रिसिशन हो जाए, ज्यादा डेसिमल वैल्यू लिखी है, जैसे कि 3.33453 5 6 7 8 9 6 5 4 3 समथिंग लाइक, देखिए कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। डेसिमल के बाद 6 या 7 से ज्यादा प्रिसिशन हो गया, अप टू 15 और 16 डेसिमल डिजिट्स आ जाए अगर डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, डबल। किस में आ जाएगा, डबल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये डबल ही होता है, या फिर आप लिखना है तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसमें देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में IEEE 754 स्टैंडर्ड क्या है। जल्दी से इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया 32 बिट और 64 बिट होते हैं। फ्लोट के बारे में हम लोग जानते हैं जल्दी से, फ्लोट। ठीक है, ये कैसे आती है वैल्यू, ये एक बार जल्दी से बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है बेटा, इस तरीके से ब्लॉक होता है। जो फर्स्ट बिट होती है बेटा रिजर्व होती है साइन बिट के लिए। किसके लिए, साइन बिट। साइन बिट मतलब प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, सेकंड बिट होती है बेटा 8 बिट्स। ये 8 बिट्स डिसाइडेड होती है एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट मतलब होता है बेटा पावर, पावर के लिए एक्सपोनेंट। और जो नेक्स्ट बिट होती है ये होती है बेटा मैंटिसा। मैंटिसा जिसको बोलते हैं 23 बिट्स होती है मैंटिसा के लिए, बेस के लिए, मैंटिसा। ठीक है, अब ऐड करिए, ये एक बिट तो यहाँ हो गई, 8 बिट्स यहाँ हो गई, 23 बिट्स हो गई। काउंट करिए, 1 + 8 + 23 कितनी हो गई बेटा, 32। ठीक है, 32 बिट्स। तो हमने 32 बिट्स को ब्रेक करके ये लिख दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो इसकी रेंज जो होती है बेटा वैसे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा ये चीज हम लोग समझ सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1 डॉट, मतलब 1 पॉइंट मैंटिसा इनटू 2 की पावर एक्सपोनेंट, 2 की पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, 2 की पावर एक्सपोनेंट। क्लियर। और ये 2 की पावर एक्सपोनेंट की जो रेंज होती है बेटा, यहाँ पर ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये एक्सपोनेंट इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 8 बिट है। 8 बिट में मैंने आप लोगों को बताया था रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, यहाँ पर 127 तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -126 टू 2 की पावर 127 तक। ठीक है, और 2 की पावर 127 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1.7014183 E38 मतलब होता है 10 की पावर 38। ठीक है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 1.7014183 E38 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई 1.7, दिस वैल्यू ये वैल्यू हो गई, और 1 पॉइंट मैंटिसा, क्योंकि ये मैक्सिमम अगर हम वैल्यू निकालना है, मैक्स वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सारे बिट क्या हो जाएंगे, 1111 हो जाएंगे, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेंज आएगी वो आएगी बेटा 3.4 E308। तो ये मैक्स वैल्यू रेंज आती है, मैक्स इस तरीके से। ठीक है, और मिन में क्या होगी, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। मिन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा,
3.4 ई माइनस 38, ठीक है, सॉरी 38 होगा यहाँ पे, 308 नहीं 38, ठीक है, 38, 308 डबल में होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डबल में आप जल्दी से मैं रेंज बता दे रहा हूँ, डबल में नोट कर लीजिएगा। ये अगर थोड़ा सा मैंने डीप में बता दिया कौन सा चीज आया कहाँ से, आप नॉर्मली आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसी तरीके से हम डबल में भी निकाल सकते हैं। डबल में भी एक बार हम बना दे रहे हैं ये बॉक्स, आपको पता होना चाहिए। ये 64 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 64 बिट आनी चाहिए, तो फर्स्ट बिट तो साइन बिट हो गई, ये साइन बिट हो गई, ठीक है। और 11 बिट्स जो होती हैं यहाँ पर होती हैं एक्सपोनेंट में, वहां पर एक्सपोनेंट में 8 बिट्स थी, यहाँ 11 बिट्स हैं। और यहाँ पर क्या है बेटा, 52 बिट्स, 52 बिट्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 बिट का, ये हो गया बेटा आपका एक्सपोनेंट, और ये हो गया आपका क्या 52 बिट्स मैंटिसा, मैंटिसा, ठीक है। तो ये कितनी बिट हो गई आप काउंट कर लीजिए, 1, 11 और 52, 52 प्लस 11 63, 63 प्लस 1 64, ठीक है, 1 प्लस 11 प्लस 52। समझ में आ गया ये कहाँ से हुआ। इसकी रेंज बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने आप फाइंड आउट करिएगा, ना आए तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट टाइम पे। 308 से ये मिन वैल्यू होती है, कहाँ तक जाती है 1.7 ई प्लस 308, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है 1.7 इंटू 10 की पावर 308, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि ई क्या होता है बेस 10 होता है, और ये प्लस क्या सिंबल है, प्लस पावर है, ठीक है। 1.7 इंटू 10 माइनस 308, इसका मतलब ये है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर और बुलियन इसी में फिनिश करते हैं जल्दी से। करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप में आपको पता ही है, बस मैं आपको रेंज बता दे रहा हूँ। इसका साइज बेटा क्या है, पहले साइज होता है 16 बिट, कितना बिट 16 बिट, 16 बिट मतलब कितना हो गया 2 बाइट्स, कितना बाइट हो गया बेटा 2 बाइट्स, क्लियर है। और जो रेंज होती है एट ए टाइम ये सिंगल करेक्टर होल्ड करता है, कितने कितने करेक्टर बेटा, सिंगल करेक्टर, जैसे ए बी सी ओनली एट ए टाइम इट कैन टेक 1 करेक्टर, ठीक है। तो इन जावा करेक्टर आर स्टोर्ड यूजिंग करेक्टर डेटा टाइप एंड दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप सपोर्ट द यूनिकोड करेक्टर सेट। ये क्योंकि जावा सपोर्ट किसको करता है बेटा, यूनिकोड करेक्टर सेट को, तो ये भी किसको सपोर्ट करेगा, यूनिकोड करेक्टर को, क्योंकि जावा में हम डेटा टाइप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइज मैंने बता दिया 16 बिट्स और 2 बाइट्स कह सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या होती है बेटा, रेंज याद रखिएगा, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं 0 टू 65,535, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है, ये आप लोग याद रखिएगा 65,535। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने डी लिखा और सिंगल कोट्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुलियन डेटा टाइप पे बेटा, जल्दी से बुलियन डेटा टाइप देखते हैं। बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये उस टाइप की वैल्यू होल्ड करते हैं जो केवल ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन y। तो इसमें रिजल्ट क्या होगा बेटा, x की वैल्यू या तो y से बड़ी होगी या तो छोटी होगी, तो या तो रिजल्ट ट्रू होगा या तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो इस टाइप के जो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में अगर जो मिलती हैं वो किस टाइप की डेटा टाइप होते हैं, बुलियन डेटा टाइप होते हैं। इट ऑलवेज यूज फॉर द लॉजिकल वैल्यू, यू कैन से, ये लॉजिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं, ठीक है, बूल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी साइज चलिए देखते हैं, इसका साइज क्या है बेटा, साइज होता है, वैसे तो देखा जाए कि बुलियन डेटा टाइप को केवल एक ही बिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि या तो ट्रू लिखना है या तो फॉल्स, तो 1 बिट में हो सकता है, लेकिन फिर भी जावा कंपाइलर जो होता है इसको असाइन करता है 8 बिट्स। वैसे तो इसके लिए सिंगल बिट ही काफी है रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन जो जावा कंपाइलर होता है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन में जावा कंपाइलर जो होता है इट ऑलवेज असाइन 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट, 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट फॉर boolean data type, but always it uses only 1 bit for representing true or false, ठीक है बेटा।
तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे। प्रिमिटिव डेटा टाइप से हमें कौन से डेटा टाइप देखे? सबसे पहले हम लोगों ने देखा न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में दो डेटा टाइप देखे, इंटीजर और फ्लोटिंग। उसके बाद नॉन न्यूमेरिक में हम लोगों ने देखा करेक्टर और बुलियन। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर अब चार डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और फ्लोटिंग में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में देखा फ्लोट एंड डबल। ठीक है बेटा, तो सारी रेंज और साइज मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा और इसको बार बार वीडियो देखिए और चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, सो गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।